Good morning everyone. The topic for today is linear programming. Now we are going to discuss this important concept of linear programming today. Special emphasis will be given on simplex method. So first of all, remember linear programming is a mathematical technique which is used to determine the maximum utilization of resources in a manufacturing or a business concern. तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब याद रखिएगा, ये वो ऑपरेशंस रिसर्च मॉडल है, वो मैथमेटिकल टेक्निक है जहां पर फुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में फोकस किया जाता है इन अ मैन्युफैक्चरिंग और अ बिजनेस कंसर्न. सो दिस होल टर्म इज कंप्राइजिंग ऑफ टू basic concepts, linear and programming. Now the word linear indicates the direct or proportionate relationship among two or more than two variables. तो ये जो linear programming word है ये दो terms से मिलकर बना है, linear and programming. और linear word का मतलब होता है it shows a direct or a proportionate relationship between among two or more than two variables, while programming refers to an operations research model, or programming refers to a modeling technique which is based on an algorithm. Algorithm का मतलब क्या होता है? Algorithm refers to a sequence of steps, a series of steps which helps a decision maker to arrive at a particular and an optimum decision. The decision could be maximization of profits or minimization of costs. So it facilitates the whole process of decision making. Now linear programming was proposed by George B. Dandvish in the year 1947, right? और linear programming के अंदर जो आज का topic of discussion होगा वो होगा simplex method. But first of all, understand some basic uses of linear programming. Linear programming is used in manufacturing. Alright, it is used in industry to find out the optimum product mix. तो linear programming के कई uses हैं, उनमें से सबसे important है it identifies, it determines the optimum product mix. Number two, linear programming, it is used in agriculture also. It is, you can take an example. If a farmer wants to make an optimum use of agricultural land for which he has decided to use some crops, so he can use linear programming also, and he can always determine the optimum product mix. Now linear programming can be used in finance sector to find out the optimum use of financial resources, how much to invest in equity, how much to invest in bonds. ये भी पता लगता है. लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर. ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर इट्स वेरी कॉमन यूज टू फाइंड आउट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो लीनियर प्रोग्रामिंग कैन आल्सो बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड, defense, agriculture. Now so there are significant uses of linear programming. And the concept that we are going to discuss today is simplex method. Now simplex method के अंदर आपको, although linear programming problems can also be solved by graphical method, but we will be taking on graphical method later on. Our focus today will be on simplex method. So simplex method के अंदर आपको एक initial simplex table setup करना पड़ेगा. Now how will you set up that simplex table? So first of all you have to see whether the problem is a maximization one or a minimization one. अगर maximization की है तब तो उसको directly solve करना पड़ेगा, लेकिन अगर problem minimization की है तो उसको हम minimize में भी solve कर सकते हैं. But the best technique is to convert that minimization problem into a maximization one. तो पहले हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देंगे मैक्सिमाइजेशन के अंदर. और कैसे कन्वर्ट करना है? बाय मल्टीप्लाइंग द होल ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय -1. तो पहला टारगेट conversion of minimization into maximization by multiplying the whole objective function by -1. Secondly,
फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर नेगेटिव राइट हैंड साइड है या नहीं। मतलब अगर आपके पास वहां पर राइट हैंड साइड में कोई नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उन नेगेटिव वैल्यूज को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में अगर माइनस में वैल्यू आ रही है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय -1 टू मेक द राइट हैंड साइड पॉजिटिव। बाकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। राइट हैंड साइड मतलब जहां से हम सॉल्यूशन वैल्यूज को डिराइव करेंगे, अगर वो माइनस के अंदर आ रही है तो फिर आपको उसको -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते ही राइट हैंड साइड आपकी माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो जाए, वो माइनस होते जाए प्लस होते जाए, डजंट मैटर, बट द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पहला काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एनालाइज किया, मैक्सिमाइजेशन का है, वेल एंड गुड। मिनिमाइज है, आपने कन्वर्ट कर दिया उसको मैक्सिमाइजेशन में बाय मल्टीप्लाइंग द होल ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय -1। फिर आपने कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड देखी, सारी पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन अगर माइनस में है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना उस इक्वेशन को, और आपके पास सारे जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाएंगी उस पर्टिकुलर इक्वेशन की। और भी किसी इक्वेशन की अगर माइनस में हो तो उसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाए। देन अगर लेस देन का साइन है कंस्ट्रेंट में, तब तो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा स्लैक वेरिएबल, हमें प्लस करना पड़ेगा स्लैक वेरिएबल। अगर कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन का साइन है तो हमें सरप्लस माइनस करना पड़ेगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। और अगर इक्वल्स टू का साइन है तो हमें वहां पर केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास लेस देन का निशान है तो लेस देन के अंदर हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, ग्रेटर है तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सरप्लस वेरिएबल, उसको माइनस करना पड़ेगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेस करना पड़ेगा। और अगर केवल इक्वल्स टू का साइन है कंस्ट्रेंट में तो सिंपली हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहे हमारे कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट, अब उसके बाद आपको देखना है कि हमारे पास अगर जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हैं उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर तो हमें 0 रखना पड़ेगा। जो भी स्लैक या सरप्लस वेरिएबल हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें 0, उनका कोफिशिएंट 0 रखना पड़ेगा। और उसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आ गए हैं तो उनका कोफिशिएंट हमें -m प्लेस करना पड़ेगा। m इज सपोजिंगली हैविंग वेरी हाई वैल्यू, ये सारा आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, बट ओवर हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग हाउ टू सेट अप एन इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो अगर आपके पास स्लैक और सरप्लस वेरिएबल है उनको तो ऑब्जेक्टिव में, और उसी तरह से उनका सीजे भी 0 जाएगा। और आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हमें -m रखना पड़ेगा। अगर मेथड हुआ 2 फेज तो वहां पर -1 हो जाएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, राइट। उसके बाद जब हम सिंप्लेक्स टेबल सेटअप करेंगे तो उसमें बेसिक वेरिएबल्स में या तो आप स्लैक वेरिएबल्स रखेंगे या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रखेंगे। सो यू कैन हैव ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन द बेसिक वेरिएबल सेक्शन और स्लैक वेरिएबल्स इन द बेसिक वेरिएबल सेक्शन। तो यहां से तो हमने सिंप्लेक्स टेबल को सेटअप किया, और डिटेल में आपको पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे। सिंप्लेक्स टेबल की आपको जो पिक्चर्स हैं वो भी शो कर देंगे और इनके सॉल्यूशंस पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके सिखाएंगे, सो दैट यू हैव गॉट अ गुड होल्ड ऑन सिंप्लेक्स मेथड, right? It is going to become one of the favorite topics for you in the coming lectures, because I will be explaining each and every technique, each and every formula in detail. ये तो केवल एक brief overview है on linear programming and simplex method, but we are going to do all these things in detail, having 2 variables, with 3 variables, with 4 variables also, so that you get hold of this technique, and later on you are going to master simplex method with the techniques which I am going to tell you. उसके बाद ये सिंप्लेक्स टेबल तो आपने सेटअप किया, then I am going to show one more chart to you, और इस चार्ट के अंदर फिर आप पहले ऑब्जर्व कीजिएगा the whole mechanism, how to set up this chart. So please have a look at this chart whereby you have reached that setting up of simplex table. तो आपने ये तो देख लिया है
कि सिंपलेक्स टेबल को सेटअप कैसे किया जाता है। और अब सिंपलेक्स टेबल को सेट करने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उनको ऑब्जर्व करिएगा। वंस यू नो यू सेटअप दैट सिंपलेक्स टेबल, देन राइट यू एग्जामिन द Cj माइनस Zj। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल मॉडल को आपने फॉर्मुलेट किया, उसमें स्लैश सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। यू हैव सेट अप एन इनिशियल सिंपलेक्स टेबल। देन जब टेबल बन जाएगा तो हमें रो Cj माइनस Zj उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। उसको नेट बेनिफिट रो भी बोला जाता है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव है तब तो वहां से की कॉलम सेलेक्ट होगा, राइट। तो Cj माइनस Zj वो एग्जामिन करेंगे हम, और Cj माइनस Zj को बोला जाता है नेट बेनिफिट रो। अगर उसमें कोई पॉजिटिव एलिमेंट है तब तो ये फर्दर आगे सॉल्व होगा। अगर Cj माइनस Zj में कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं है तो वो सॉल्यूशन वहीं पर रोक दिया जाएगा और वहीं से फिर आपको फाइनल आंसर्स को डिराइव करना पड़ेगा। तो Cj माइनस Zj को बोला जाता है नेट बेनिफिट रो। अगर उसमें कोई पॉजिटिव आ रहा है उस एलिमेंट से हमें की कॉलम डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू बनेगा की कॉलम। की कॉलम से आएंगे हमारे पास रेशियोज, और रेशियोज के अंदर हमें लेनी पड़ेगी लोएस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, मतलब लोएस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो वैल्यू जो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी जीरो, तो वो वैल्यू लेकर हमें की रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उससे हमें पता लगेगा आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है, की कॉलम से इनकमिंग यानी कि एंटरिंग वेरिएबल। तो इनकमिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, तब तक करते जाना है जब तक Cj माइनस Zj हमारी पूरी जीरो या नेगेटिव नहीं हो जाती। वंस दैट सिचुएशन हैज अचीव्ड, जब आपका पूरा नेट बेनिफिट रो जीरो या नेगेटिव आ गया, देन यू अराइव टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, then you have to just portray the optimum solution in your interpretation और conclusion। दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास इनिशियली फर्स्ट सेकंड या आगे किसी भी टेबल के अंदर रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव आ गई, राइट, इफ द रेशियोज आर नेगेटिव देन यू कैन नॉट सॉल्व फर्दर, क्योंकि आपको क्या बताया, रेशियोज की सारी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव में से आपको लेनी है, मतलब पॉजिटिव या जीरो, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर रेशियो में कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई या सारी नेगेटिव आ गई अगर, तो वहां पर आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ रेशियोज आर नेगेटिव यू गेट अनबाउंडेड सॉल्यूशन। हाउएवर ऐसा हुआ कभी आपका Cj माइनस Zj नेट बेनिफिट रो पूरी जीरो या नेगेटिव हो गई, बट इफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट्स इन द फाइनल टेबल, right, if artificial variable exists in the final table then you have an infeasible solution or non feasible solution। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अनबाउंडेड सॉल्यूशन जब रेशियो सारे नेगेटिव हो, नॉन फीजिबल सॉल्यूशन जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके सिस्टम में लास्ट टेबल तक रह जाए, जब Cj माइनस Zj यानी नेट बेनिफिट रो आपके पास सारी वैल्यू जीरो या नेगेटिव हो, लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, इट हैज नॉट लेफ्ट द होल सिस्टम, देन यू हैव गॉट नॉन फीजिबल सॉल्यूशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। We are going to find out the optimum product mix using Simplex method, and I emphasize this is going to be very interesting. You have to catch hold of the techniques that I am going to explain in the coming lectures, and this journey is going to be a memorable one as far as Simplex method is concerned.